हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो अब हम स्टार्ट करना है आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये क्लास 11 का टेक्स्ट बुक है, डेफिनेटली फ्रॉम एनसीईआरटी पब्लिकेशन। तो ये जो है देखो रिसेंट वन है, मैंने रिसेंटली इस पीडीएफ को डाउनलोड किया। मैंने इंडिया और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मेरे को वो एक्सीडेंटली हुआ था, मैंने सर्च किया था तो मैंने सोचा कि हाँ रिसेंटली होगा, तो मैंने डाउनलोड कर लिया और पढ़ना स्टार्ट किया। तो बाद में पता चला कि डाटा जो है सारे कुछ 2005 का है बाय द वे। तो हम देखो एकदम रिसेंट डाउनलोड किया है और इस पीडीएफ को मैं आपको जैसे कि बताया है पहले वीडियोस में भी, ये टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। मैं एक दिन सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद, तो वहाँ से आप एक साथ सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो बुक है लगभग 130 पेजेस का है, मतलब ये फॉरवर्ड देन उसके आगे ग्लॉसरी वगैरह आप ये सारे निकाल दोगे तो और तो आप इजीली आपका 60 या फिर हाँ 60 रुपीज़ के अंदर आप प्रिंट करोगे तो 60 रुपीज़ के अंदर ये बुक आपका बुक बन के आ जाएगा। तो अगर आपको हार्ड कॉपीज़ पसंद है या फिर पढ़ना अच्छा लगता है तो आप ना खरीद के प्रिंट भी कर सकते हो। ऐसे मैं खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा आपको, ठीक है, आप खरीद सकते हो क्योंकि वहाँ उस खरीदने से आपको बाइंडिंग साथ में मिल जाता है, अच्छी होती है, ठीक है। बट अगर आपको दिक्कत है खरीदने में, आपको लगता है कि प्राइस ज़्यादा है, तो आप प्रिंट भी करवा सकते हो। ऐसे ये ऐसा बोलना क्या इलीगल तो नहीं होगा ना, मेरे को नहीं पता इससे एग्जैक्ट, ठीक है, देखना पड़ेगा हाँ इस बात को कि ये बोलना इलीगल है क्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैप्टर टोटल है आपका, 14 चैप्टर्स है आपका और 120 पेजेस है। देखो देख रहा, 130 से भी कम है, 120 पेजेस सबका है, यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा 120 पेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, और हमारा सोल पर्पस क्या है, टू टारगेट दी एग्जाम्स लाइक EMRS। ओके, देन आपका हो गया क्या, yes, BPSC and all other upcoming teaching examinations as well. And definitely class 12th or 11th students also can follow these videos to read the book. Okay, so let's start. Geography as a discipline. You have studied geography as one of the components of your social science course up to the secondary stage. You are already aware of some of the phenomena of geographical nature in the world and its different parts. Now you will study geography as an independent subject and learn about the physical environment of the earth, human activities and their interactive relationships. Therefore, a pertinent question you can ask at this stage is, why should we study geography? We live on the surface of the earth. Our lives are affected by our surroundings in many ways. We depend on the resources to sustain ourselves in the surrounding areas. Primitive societies subsisted on natural means of subsistence, that is, edible plants and animals. With the passage of time, we developed technologies and started producing our food using natural resources such as land, soil, and water. We adjusted our food habits and clothing according to the prevailing weather conditions. There are variations in the natural resource base, technological development, adaptation with and modification of physical environment, social organization, and cultural development. As a student of geography, you should be curious to know about all the phenomena which vary over space. You learn about the diverse lands and people. You should also be interested in understanding the changes which have taken place over time. Geography equips you to appreciate diversity and investigate into the causes responsible for creating such variations over time and space. You will develop skills to understand the globe converted into maps and have a visual sense of the earth's surface. The understanding and the skills obtained in modern scientific techniques such as GIS and computer cartography equip you to meaningfully contribute to the national endeavor for development. Now, the next question which you may like to ask is, what is geography? You know that Earth is our home. It is also the home of many other creatures, big and small, which live on the earth and sustain. The earth's surface is not uniform. It has variations in its physical features. There are mountains, hills, valleys, plains, plateaus, oceans, lakes, deserts, and wilderness. There are variations in its social and cultural features too. There are villages, cities, roads, railways, ports, markets, and many other elements created by human beings across the entire period of their cultural development.
This variation provides a clue to the understanding of the relationship between the physical environment and social or cultural features. The physical environment has provided the stage on which human societies enacted the drama of their creative skills with the tools and techniques which they invented and evolved in the process of their cultural development. ओके कहाँ पर था? यू विल डेवलप स्किल्स टू अंडरस्टैंड द ग्लोब कन्वर्टेड इनटू मैप्स, यहाँ पर ना, एंड हैव अ विजुअल सेंस, आई थिंक सो. Okay, let's start from here. Of the earth surface to understand the understanding and the skills the understanding and the skills obtained in modern scientific techniques such as GIS and computer cartography equip you to meaningfully contribute to the national endeavor for development. मैंने पेज को थोड़ा जूम कर लिया तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बेकार में ऐसे रख रहा हूँ तो ये इस साइड मेरा कोई काम का भी नहीं है, और ये आज होप ज़्यादा आपको अच्छे से दिखेगा लाइंस को, ठीक है, और मेरे को भी पढ़ने में आसानी हो रहा है. चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू मे लाइक टू आस्क, व्हाट इज जियोग्राफी? यू नो दैट अर्थ इज आवर होम. इट इज ऑल्सो द होम ऑफ मेनी अदर क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल which live on the earth and sustain. The earth's surface is not uniform. It has variations in its physical features. There are mountains, hills, valleys, plains, plateaus, oceans, lakes, deserts and wilderness. There are variations in its social and cultural features too. There are villages, cities, roads, railways, ports, markets and many other elements created by human beings across the entire period of their cultural development. This variation provides a clue to the understanding of the relationship between the physical environment and social or cultural features. The physical environment has provided the stage on which human societies enacted the drama of their creative skills with the tools and techniques which they invented and evolved in the process of their cultural development. Now you should be able to attempt the answer of the question posed earlier as to what is geography. In very simple words, it can be said that geography is the description of the earth. The term geography was first coined by Eratosthenes. Remember this, Greek scholar. The word has been derived from two roots from Greek language, geo and graphos, description. तो एराटोस्थेनिस को फादर ऑफ द जियोग्राफी कहा जाता है. उसके साथ हम और एक रिसेंटली मैंने लूसेंट जीके में पढ़ा था कि एराटोस्थेनिस इन्होंने दी फादर ऑफ जियोग्राफी, ये तो हमको पता है, बट वहाँ पर और एक का नाम था, क्या था, भूल रहा हूँ, क्यों मैं इतना भूल रहा हूँ मैं. हाँ, तो वहाँ पर ये बात मेंशन था कि हिकेटस इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी. ठीक है, तो याद रखना, अगर एराटोस्थेनिस ऑप्शन में नहीं है तो आपको हिकेटस को चूज़ करना है. ठीक है, ओके. नाउ तो ये हमने पढ़ ली. अब देखो नेक्स्ट पेज पे आते हैं. पुट टुगेदर दे मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. द अर्थ हैज ऑलवेज बीन सीन एज द abode of human beings, and thus scholars define geography as the description of the earth as the abode of human beings. You are aware of the fact that reality is always multifaceted and the earth is also multidimensional. That is why many disciplines from natural sciences such as geology, pedology, oceanography, botany, zoology and meteorology, and a number of sister disciplines in social sciences such as economics, history, sociology, political science, anthropology, etc. study different aspects of the earth's surface. Geography is different from other sciences in its subject matter and methodology, but at the same time it is closely related to other disciplines. Geography derives its data base from all the natural and social sciences and attempts their synthesis. We have noted that there exist variations over the surface of the earth in its physical as well as cultural environment. A number of phenomena are similar and many are dissimilar. It was therefore logical to perceive geography as the study of areal differentiation. The geography was perceived to study all those phenomena which vary over space. Geographers do not study only the variations in the phenomena over the earth's surface space, but also study the associations with the other factors which cause these variations. For example, cropping patterns differ from region to region, but this variation in cropping pattern as a phenomenon is related to variations in soils, climates, demands in the market, capacity of the farmer to invest and technological inputs available to her or him. Thus, the concern of geography is to find out the causal relationship between any two phenomena or between more than one phenomenon. So, phenomenon is a singular term, singular, and phenomena is a plural term. ये ध्यान रखना. A geographer explains the phenomena in a frame of cause and effect relationship, as it does not only help in interpretation but also foresees the phenomena in future. The geographical phenomena, both the physical and human, are not static but highly dynamic. They change over time as a result of the interactive processes between ever changing earth and untiring and ever active human beings.
Primitive human societies are directly dependent on their immediate environment. Geography thus is concerned with the study of nature and human interactions as an integrated whole. Human is an integral part of nature, and nature has the imprints of human. Nature has influenced different aspects of human life. Its imprints can be noticed on food, clothing, shelter, and occupation. Human beings have come to terms with nature through adaptation and modification. As you already know, the present society has passed the stage of primitive societies which are directly dependent on their immediate physical environment for sustenance. Present societies have modified their natural environment by inventing and using technology, and thus have expanded the horizon of their operation by appropriating and utilizing the resources provided by nature. With the gradual development of technology, human beings are able to loosen the shackles of their physical environment. Technology helped in reducing the harshness of labor, increased labor efficiency, and provided leisure to human beings to attend to the higher needs of life. It also increased the scale of production and the mobility of labor. The interaction between the physical environment and human beings has been very succinctly described by a poet in the following dialogue between human and nature. You created the soil, I created the cup. You created night, I created the lamp. You created wilderness, hilly terrains and deserts, I created flower beds and gardens. Human beings have claimed their contribution using natural resources. With the help of technology, human beings moved from the stage of necessity to a stage of freedom. They have put their imprints everywhere and created new possibilities in collaboration with nature. Thus, we now find humanized nature and naturalized human beings, and geography studies this interactive relationship. The space got organized with the help of the means of transportation and communication network. The links, routes and nodes, settlements of all types and hierarchies integrated the space, and gradually it got organized. As a social science discipline, geography studies the spatial organization and spatial integration. Geography as a discipline is concerned with the three sets of questions. So geography as a discipline is concerned with three sets of questions. Number one, some questions are related to the identification of the patterns of natural and cultural features as found over the surface of the earth. These are the questions about what. Some questions are related to the distribution of the natural and human or cultural features over the surface of the earth. These are the questions about where. Taken together, both these questions take care of distributional and locational aspects of the natural and cultural features. These questions provide inventorized information of what features and where located. It was a very popular approach during the colonial period. These two questions did not make geography a scientific discipline till the third question was added. The third question is related to the explanation or the causal relationship between features and the process and phenomena. This aspect of geography is related to the question why. Geography as a discipline is related to space and takes note of spatial characteristics and attributes. It studies the patterns of distribution, location, and concentration of phenomena over space and interprets them, providing explanations for these patterns. It takes note of the associations and interrelationships between the phenomena over space and interprets them, providing explanations for these patterns. It also takes note of the associations and interrelationships between the phenomena resulting from the dynamic interaction between human beings and their physical environment. Geography is an integrating discipline. Geography is a discipline of synthesis. It attempts spatial synthesis, and history attempts temporal synthesis. Time and spatial means place, location. Its approach is holistic in nature. It recognizes the fact that the world is a system of interdependencies. The present world is being perceived as a global village. ऐसे करने से क्या हो रहा है कि फॉन्ट ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मतलब पढ़ने में दिक्कत। ये जो है ये मीडियम है तो ये ज़्यादा अच्छा है। बाय द वे स्क्रीन थोड़ा मतलब इधर कट रहा है, बट आई होप आपको समझ में आएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको भी अच्छा लगेगा। ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। द प्रेजेंट वर्ल्ड इज बीइंग परसीव्ड एज ए ग्लोबल विलेज. द डिस्टेंसेज हैव बीन रिड्यूस्ड बाय बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी. The audiovisual media and information technology have enriched the database. Technology has provided better chances of monitoring natural phenomena as well as the economic and social parameters. Geography as an integrating discipline has interfaced with numerous natural and social sciences. All the sciences, whether natural or social, have one basic objective of understanding the reality. Geography attempts to comprehend the associations of phenomena as related in sections of reality.
फिगर हम बाद में देखेंगे. Shows the relationship of geography with other sciences. So every discipline concerned with scientific knowledge is linked with geography as many of their elements vary over space. Geography helps in understanding the reality in totality in its spatial perspective. Geography thus not only takes note of the differences in the phenomena from place to place but integrates them holistically, which may be different at other places. A geographer is required to have a broad understanding of all the related fields to be able to logically integrate them. This integration can be understood with some examples. Geography influences historical events. Spatial distance itself has been a very important factor to alter the course of history of the world. Spatial depth provided defense to many countries, particularly in the last century. In traditional warfare, countries with large size in area gained time at the cost of space. The defense provided by oceanic expanse around the countries of the New World has protected them from wars being imposed on their soil. If we look at the historical events world over, each one of them can be interpreted geographically. In India, Himalayas have acted as great barriers and provided protection, but the passes provided routes to the migrants and invaders from Central Asia. The sea coast has encouraged contact with people from East and Southeast Asia, Europe and Africa. Navigation technology helped European countries to colonize a number of countries of Asia and Africa, including India, as they got accessibility through oceans. The geographical factors have modified the course of history in different parts of the world. अब हम ये फिगर को देख लेते हैं कि फील्ड ऑफ जियोग्राफी. तो ये देखो काफ़ी आसान है. यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं. कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? ठीक है, हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं. देखो हिस्टोरिकल जियोग्राफी तो हिस्ट्री के साथ लिंक्ड है. देन सोशल जियोग्राफी सोशियोलॉजी के साथ लिंक्ड है. और जियोग्राफिकल थॉट्स फिलोसॉफी के साथ लिंक्ड है. कल्चरल जियोग्राफी जो है एंथ्रोपोलॉजी के साथ लिंक्ड है. एनवायरमेंटल जियोग्राफी एनवायरमेंटल साइंस के साथ लिंक्ड है. इकोलॉजी ह्यूमन इकोलॉजी के साथ लिंक्ड है. जियोलॉजी जूओ जियोग्राफी के साथ लिंक्ड है. मतलब जूओ जियोग्राफी जूलॉजी के साथ लिंक्ड है, या फिर उसका आइडिया यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं. फाइटो जियोग्राफी में बोटनी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. सॉइल जियोग्राफी में पेडोलॉजी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. ओशियोनोग्राफी में हाइड्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. क्लाइमेटोलॉजी में मेटेरोलॉजी का कॉन्सेप्ट मेट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. एंड जियोमॉर्फोलॉजी में जियोलॉजी का कॉन्सेप्ट यूज होता है. नाउ क्या लिखा है? मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी में हम मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी यूज़ करते हैं. स्टैटिस्टिकल इकोनोमेट्रिक्स जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन जियोग्राफी में हम यूज़ करते हैं. एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी में हम इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. पॉपुलेशन जियोग्राफी में डेमोग्राफी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. पॉलिटिकल जियोग्राफी में पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. तो ये सारे जो फील्ड्स है जियोग्राफी का, ये किसी न किसी ब्रांच मतलब और एक मदर डिसिप्लिन के साथ लिंक्ड है. इसलिए जियोग्राफी इज अ सिंथेसिस ऑफ मेनी डिसिप्लिन्स. हम यहाँ तक पढ़े थे. तो एवरी जियोग्राफिकल फेनोमेना अंडरगो चेंज through time and can be explained temporally. The changes in landforms, climate, vegetation, economic activities, occupations and cultural developments have followed a definite historical course. Many geographical features result from the decision making process by different institutions at a particular point of time. It is possible to convert time in terms of space and space in terms of time. For example, it can be said that place A is 1500 km from place B, or alternately it can also be said that place A is 2 hours away or 17 hours away if one travels by a fast moving train. It is for this reason time is an integral part of geographical studies as the fourth dimension. Okay, so other three are what? That is height, width and length. These are the three dimensional we know, but in case of geography we have time is considered as a fourth dimension. Already asked क्या है, please mention other three dimensions. हाँ, देन फिगर 1.1 एम्पली डेपिक्स जो हमने अभी देखा लिंकेजेस ऑफ जियोग्राफी विद डिफरेंट नेचुरल एंड सोशल साइंसेज. दिस लिंकेज कैन बी पुट अंडर टू सेगमेंट्स. सो ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी हम स्टडी करेंगे. प्लीज स्टडी फिगर 1.1 फॉर रिकैपिचुलेशन. या ऑलरेडी डिड दैट. इट एज वेरी क्लियरली ब्रॉट आउट दैट जियोग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. द स्टडी ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज डन अकॉर्डिंग टू सम अप्रोच. द मेजर अप्रोचेस टू स्टडी जियोग्राफी हैव बीन सिस्टमेटिक and regional. The systematic geography approach is the same as that of general geography. This approach was introduced by Alexander von Humboldt. तो Humboldt ने systematic geography का approach introduce किया था. बहुत important है, आप याद रखिएगा जरूर. And he was a German geographer. You know, जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट दिया था तो ये Humboldt जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था कि परमाफ्रॉस्ट का. तो क्वेश्चन ऐसा था कि परमाफ्रॉस्ट का कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था वो कौन सी कंट्री में बिलोंग करते थे, मतलब ऐसे
तो मैंने गलत करके इसको जर्मन की जगह अमेरिकन करके चलाया था। मेरे को पता था कि ये हम्बल्ड है, बट पता नहीं यार क्या हो गया था। ठीक है, और बात है, चलो तो सारा एक्सपीरियंस पहले है, तो ये ध्यान से पढ़ना है आपको, सारी चीज़ें पढ़ना है, मतलब चीज़ें दिया हुआ है मतलब पढ़ना है। While regional geography approach was developed by another German geographer and a contemporary of Humboldt, that is Karl Ritter। देखो दोनों ही जर्मन थे, क्योंकि जर्मनी में ही जियोग्राफी है पहले जो स्टार्ट हुआ था, पहला जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वो जर्मनी में ही हुआ था। तो Humboldt is known for systematic geography and Karl Ritter developed the regional geography concept। In systematic approach, a phenomena is studied world over as a whole। ओके, तो सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या किया जाता है कि एक फेनोमेना को लिया जाता है और पूरा वर्ल्ड में उसका क्या सिचुएशन है वो दिखा जाता है, उसको हम सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं। एंड देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइपोलॉजीज और स्पेशल पैटर्न्स इज डन। तो जो भी है, क्या क्या वेरिएशन है, क्या है नहीं है, पूरा हम स्टडी करेंगे, बट फेनोमेना ही एक ही पर्टिकुलर टॉपिक होगा वो, मतलब और पूरा वर्ल्ड ओवर उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। For example, if one is interested in studying natural vegetation, the study will be done at the world level as a first step। देख रहे हो, the typology such as equatorial rainforest, फिर उसको हम टाइपोलॉजीज मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं ना, क्योंकि हर जगह तो हमको सिर्फ एक ही टाइप की वेजिटेशन नहीं मिलेगा, तो डिफरेंट टाइप्स मिलेगा हमको, तो उसे टाइपोलॉजीज बोल रहा है, सच एज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और सॉफ्टवुड कॉनिकल फॉरेस्ट और मानसून forest etc. will be identified, discussed and delimited। In the regional approach, the world is divided into regions at different hierarchical levels and then all the geographical phenomena in a particular region are studied। तो हमने एक पर्टिकुलर फेनोमेना को लिया और पूरा वर्ल्ड वाइड उसका क्या सिचुएशन है वो हमने स्टडी किया, तो वो हो गया सिस्टमेटिक अप्रोच। आप मान लो पूरा वर्ल्ड को ना लेकर मैंने सिर्फ इंडिया का लिया, इंडिया को लिया और यहाँ पर पूरा सारे जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स को हमने स्टडी कर ली, तो वो होगा क्या, मतलब यहाँ पर टॉपिक ज़्यादा हो गया और रीजन सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन हो गया, मतलब एरिया जो है लिमिटेड हो गया और सारे टॉपिक्स हमने उस एरिया के ऊपर अप्लाई करेंगे या फिर सारे कॉन्सेप्ट उस एरिया के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो वो हो गया हमारा रीजनल जियोग्राफी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहे देखो, इन द रीजनल अप्रोच द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स एंड देन ऑल द जियोग्राफिकल फेनोमेना इन अ पर्टिकुलर रीजन आर स्टडीड। हाँ, दीज रीजन्स में भी नेचुरल, पॉलिटिकल और डेजिग्नेटेड रीजन्स। तो रीजन्स का हम जैसे कंट्री वाइज डिवाइड कर दिया, तो हमने इंडिया को लिया। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज डिवाइड करेंगे तो मान लो हम पूरा एशिया को ले सकते हैं, या फिर इंडिया को फिर डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड करके, मतलब स्टेट्स में डिवाइड करके कोई एक पर्टिकुलर स्टेट को स्टडी कर सकते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। द फेनोमेना इन ए रीजन आर स्टडीड इन ए हॉलिस्टिक मैनर सर्चिंग फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो रीजनल अप्रोच का मेन पर्पस क्या होता है कि टू स्टडी द रीजन इन ए हॉलिस्टिक मैनर इन सर्च ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस है, उनमें से क्या यूनिटी है, कैसे है यूनिटी, वो हम स्टडी करते हैं। Now dualism is one of the main characteristics of geography which got introduced from the very beginning। This dualism depended on the aspect emphasized in the study। Earlier scholars laid emphasis on physical geography, but human beings are an integral part of the earth's surface। They are part and parcel of nature। They also have contributed through their cultural development, thus developed human geography विथ एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हमने एक सेपरेट ब्रांच बनाया जो कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। नाउ ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। तो बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच क्या क्या ब्रांचेस हो सकता है, तो एक हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसके अंदर और भी ब्रांचेस है, देखो जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, देयर इवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। क्लाइमेटोलॉजी एनकम्पासेस द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स एंड क्लाइमेटिक टाइप्स एंड रीजन्स। Hydrology studies the realm of water over the surface of the earth, including oceans, lakes, rivers, and other water bodies, and its effect on different life forms, including human life and their activities. Soil geography devoted to study the processes of soil formation, soil types, their fertility status, distribution, and use. Now, human geography के अंदर social और cultural geography आता है, encompasses the study of society and its special dynamics as well as the cultural elements contributed by the society। तो ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच क्या क्या है हम बाद में इसको देखते हैं समराइज करने के लिए। अभी इसको पढ़ लेते हैं, पहले जब स्टार्ट किया तो। देन देखो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, रूरल एंड अर्बन स्टडीज, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन। ये क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी में आपको पहले भी बताया मैंने, बीपीएससी में देखा एक क्वेश्चन यह पूछा था कि माइग्रेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब ऐसे कुछ था, तो वो कौन सी ब्रांच के अंदर आता है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन का नाम ही नहीं दिया गया था बट ह्यूमन जियोग्राफी था। तो ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। और उसका सोशल कल्चरल था, तो ऐसे करके कुछ था, आई थिंक सोशल जियोग्राफी था, कल्चरल जियोग्राफी था,
तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो आपको पॉपुलेशन अगर नहीं दिया है ऑप्शन में तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी चूज़ करना है, ना कि सोशल कल्चरल वाला। नाउ इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज एटसेट्रा। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी भी एक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। स्टडीज दी हिस्टोरिकल प्रोसेसेस थ्रू व्हिच दी स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज्ड। एवरी रीजन हैज अंडरगोन सम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस बिफोर अटेनिंग द प्रेजेंट डे स्टेटस। द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑल्सो experience temporal changes and these form the concerns of historical geography। ठीक है, तो फिजिकल पढ़ा हमने, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा, अब आता है बायो ज्योग्राफी। देखो, द इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायो ज्योग्राफी व्हिच इंक्लूड्स प्लांट ज्योग्राफी, that is which studies the special pattern of natural vegetation in their habitats, zoo geography which studies the special patterns and geographical characteristics of animals and their habitats। हमने पढ़ा ही नहीं है, हाँ ना, तो ग्रेजुएशन में ये मतलब ऐसा कुछ पेपर था प्लांट जियोग्राफी नाम के, वही बायो जियोग्राफी था, हाँ बायो जियोग्राफी था, ठीक है, ग्रेजुएशन में। और इकोलॉजी और इकोसिस्टम डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी, इकोलॉजी का भी एक पेपर था, एक ह्यूमन इकोलॉजी बोल के, तो पेपर था या साबिन था, कुछ था, ये एग्जैक्ट याद नहीं है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हैबिटेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी था, तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी क्या है, बायो ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, तो ये सारे बातें आपको याद रखना है। कंसर्न्स वर्ल्ड ओवर leading to the realization of environmental problems such as land degradation, pollution and concerns for conservation has resulted in the introduction of this new branch in geography। Now तो ये हमने सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू जो भी ब्रांच हो सकता है उसको पढ़ लिया हमने। तो देखा मेन ब्रांच क्या क्या है, 3 है, फिजिकल है, ह्यूमन है, बायो ज्योग्राफी है, और उसके अंडर अब फिर से तीनों के अंडर मतलब बहुत सारे ब्रांचेस हो। तो एक बार हम इस चार्ट को पढ़ लेंगे अब तो देखो, ये देखो ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। तो हम जब 4 में डिवाइड कर सकते हैं, बट सॉरी क्या बता दिया यार, यहाँ पर तो तीनों बात कर लिया फिर। अच्छा, इस डायग्राम को हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने तो 3 ही पढ़ा ना, यहाँ पर देखो फिजिकल, फिर यहाँ पर रीजनल चला आया, बट यहाँ पर और भी सारे कुछ है वहाँ पर दिखा रहा है। तो एक बार हम समझने की कोशिश कर देंगे और डेफिनेटली हम समझ भी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम पहले तो 4 ब्रांचेस में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक ना। एक हो गया फिजिकल, देन प्रिंसिपल्स और फिलोसॉफी, देन मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड ह्यूमन। तो आई थिंक ये बेसिस है कि इसके बेसिस पर हम ब्रांचेस को निकालेंगे, ठीक है। तो फिजिकल के बेसिस पर हम देखो क्या क्या ब्रांचेस निकालेंगे, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर क्या क्या ब्रांचेस आएगा, तो या फिर फिजिकल एस्पेक्ट पर बेस पर बोल सकते हो ऐसा कुछ, क्योंकि हम प्रिंसिपल ज्योग्राफी तो बोल नहीं सकते, ऐसा कुछ होता नहीं। फिलोसफी ज्योग्राफी कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा कुछ होता नहीं। मेथड्स एंड टेक्निक्स ज्योग्राफी ऐसा कुछ होता नहीं, तो इसको हम ब्रांचेस तो नहीं बोल सकते। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, दैट इज कम्प्लीटली ओके, राइट। बट यहाँ पर हम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स और फिलोसफी ऐसा बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन द मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन जियोग्राफी, बेस्ड ऑन दैट वी डिवाइड जियोग्राफी इनटू दीज ब्रांचेस, दैट इज कम्प्लीटली ओके। सो फिजिकल एस्पेक्ट्स और फिजिकल जियोग्राफी यू कैन से दैट, नो डाउट, कि वी गॉट जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, नॉट हाइड्रोलॉजी तो एक्चुअली द साइंस ना, so we say rather कि oceanography and then soil geography। okay, now ये फिजिकल वाला हो गया। आप देखते हैं हम, ओके अब हम देखो फिलोसफी और बेस्ड ऑन प्रिंसिपल देखेंगे। तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस है, जियोग्राफिकल थॉट एक है और ह्यूमन इकोलॉजी एक है, जो कि लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन है। इसी ह्यूमन इकोलॉजी किस में आता है, बायो जियोग्राफी के पार्ट में आता है ना, क्या यहाँ ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी सिस्टमेटिक जियोग्राफी है, ह्यूमन इकोलॉजी सिस्टमेटिक में था। यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ ना, ये फिजिकल जियोग्राफी है, तो यहाँ पर देखो तो था नहीं भाई, यहाँ पर ह्यूमन इकोलॉजी कहाँ पर था, ह्यूमन इकोलॉजी कहाँ पर था, देखो ह्यूमन इकोलॉजी हमारा ये बायोलॉजी में ही तो था ना, इकोलॉजी वाला बायो जियोग्राफी में था, फिर ह्यूमन इकोलॉजी। मतलब यहाँ पर कुछ बोला कुछ और गया, दिखाया कुछ और जा रहा है, क्या भाई एनसीईआरटी क्या कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो तुम यार।
ठीक है चलो मान लेते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। तो हम जियोग्राफिकल थॉट और ह्यूमन इकोलॉजी। नेक्स्ट देखो मेथड्स एंड टेक्निक्स के बेसिस पर हम चार फील्ड या ब्रांचेस निकाल सकते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच ऑन बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है, कार्टोग्राफी है, फील्ड सर्वे मेथड्स है, ये सब काफ़ी नहीं सुना है, फील्ड सर्वे मेथड्स, तो मेथड्स है, ब्रांच कैसे हुआ ये। देन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, भाई ये भी ब्रांच कैसे हुआ ये, तो कार्टोग्राफी में ही तो सारी चीज़ यूज़ होता है ना। ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को माना जा सकता है ऐसे कार्टोग्राफी के अलावा, मतलब कार्टोग्राफी तो मैप मेकिंग है, बट उसके अलावा और भी हम जो एनालिसिस क्या स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर रख सकते हैं। और एक देखो जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का भी अब 3 डिवीज़न है, जैसे कि GIS हो गया, GPS हो गया, LIS हो गया। ठीक है, तो हम ये स्पेशल स्टडीज़ हो गया। LIS मीन्स क्या होते हैं, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ होता है ऐसा। ठीक है, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स ये याद रखना एटलीस्ट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज हैज़ 3 ब्रांचेस, GIS, GPS, LIS। ओके, नाउ ह्यूमन। ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी को देखो हम बहुत सारे भाग कर सकते हैं, जैसे कि आपका एक हो गया सोशल और कल्चरल, दूसरा हो गया पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, देन हिस्टोरिकल भी एक है, पॉलिटिकल भी एक है, इकोनॉमिक भी एक है। ठीक, ये हो गया, कितना हुआ 1 2 3 4 5 डिवीज़न हो गया। अब देखो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 2 टाइप्स, रूरल एंड अर्बन। ठीक है, बट रूरल जियोग्राफी ऐसा तो हम पढ़ते नहीं, कभी सुना ही नहीं भाई रूरल जियोग्राफी होता है क्या, बट रूरल सेटलमेंट होता है, बट हाँ रूरल जियोग्राफी तो नहीं पढ़ते ना ऐसे। अर्बन जियोग्राफी जैसे एक ब्रांच है अर्बन जियोग्राफी, बट ऐसे रूरल जियोग्राफी तो नहीं पढ़ते हम, फिर इसको ब्रांच क्यों माना गया पता नहीं यार। देन देखो इकोनॉमिक जियोग्राफी को हम बहुत सारे भाग में बांट सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर जियोग्राफी हो गया, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी हो गया, टूरिज्म जियोग्राफी हो गया, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जियोग्राफी, अच्छा ये तो नहीं सुना, सर्विसेज जियोग्राफी ये भी नहीं सुना। ठीक है, बस समझ रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पर गलत लिखा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं सुना नहीं, मतलब पढ़ा नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ जानना है अभी, वो बात है। चलिए नेक्स्ट तो हम ये सिस्टमेटिक अप्रोच पे ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच, ये हमने देख लिया। अच्छा, तो यहाँ पर देखो फिजिकल वगैरह की बात नहीं है, यहाँ पर बेस्ड ऑन अप्रोच की बात कर रहा है, अप्रोच। ठीक है, और ये सारे चीज़ों को जब मिला कनेक्ट कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला और नीचे वाला, ये मेनली हमारा क्या है कि फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी को कनेक्ट करके जो बन रहा है वो हो गया आपका इंटरफेस बायोजियोग्राफी या बायोजियोग्राफी। तो उसके अंदर क्या है, प्लांट जियोग्राफी है, जियो जियोग्राफी है, एनवायरमेंटल जियोग्राफी है। तो सिर्फ हमने ये एक ही पढ़ा है, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, इकोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी है। ठीक है, तो ये 4 ब्रांचेस इसका बायोजियोग्राफी के अंदर आता है, प्लांट जियोग्राफी, जियो जियोग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी एंड इकोलॉजी। ओके गुड। अब हाँ, तो हमने बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी हमने देख लिए। अब देखो ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, तो ये हमने पढ़ा नहीं, पहले इसको ही देख लेते हैं टेबल को। देखो 4 ब्रांच है, रीजनल स्टडीज और एरिया स्टडीज, देन रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, रीजनल प्लानिंग। तो रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ये टर्म के साथ काफ़ी फेमिलियर हूँ, बट ये रीजनल एनालिसिस क्या होता है नहीं पता, नेवर हार्ड और स्टडीड। एंड रीजनल स्टडीज और एरिया स्टडीज ये तो ठीक है, डिजर्टेशन मान लो जब किया था तब काफ़ी मतलब इस टर्म को काफ़ी बार सुनने को मिला था। ठीक है, ओके। तो हम अब फिर से देखते हैं कि रीजनल स्टडीज और एरिया स्टडीज़ को हम 3 टाइप्स हो सकता है या फिर 3 ब्रांचेस निकाल सकता है। एक हो गया मैक्रो रीजनल स्टडीज, मेसो रीजनल स्टडीज, माइक्रो रीजनल स्टडीज। हाँ, ये हम टर्म्स हमने सुने होंगे कि मैक्रो रीजन, मेसो रीजन, माइक्रो रीजन। अब देखो रीजनल प्लानिंग को भी हम 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, एक हो गया कंट्री और रूरल प्लानिंग, दूसरा हो गया टाउन और अर्बन प्लानिंग। ओके, तो इसी का जो है आप डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया हुआ है, देखो ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, क्योंकि यहाँ के पहले तक हमने पढ़ा था। तो रीजनल स्टडीज और एरिया स्टडीज कंप्राइजिंग मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो रीजनल स्टडीज, रीजनल प्लानिंग जो है कंप्राइजिंग कंट्री और रूरल एंड टाउन और अर्बन प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, रीजनल डेवलपमेंट। मैंने कुछ नहीं लिखा भाई, क्या हो गया ये, मतलब बकवास है ना। रीजनल एनालिसिस देखो, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स व्हिच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन, दीज आर फिलोसॉफी
टू एस्पेक्ट्स विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन। अच्छा, ये बात ध्यान रखना। एक हो गया क्या फिलोसॉफी, दूसरा हो गया मेथड्स एंड टेक्निक्स। हाँ, तो ये सारे सब्जेक्ट्स में होते हैं। फिर एक फिलोसॉफी होता है, चिंता भावना होती है, और एक क्या मेथड्स एंड टेक्निक्स कुछ होती है जो जहाँ पर हम डाटा या फिर जो भी इंफॉर्मेशन उसका एनालिसिस करते हैं। तो रीजनल एनालिसिस है ये। तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन, दीज आर फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी के बेसिस पर हमने दो ब्रांचेस देखा था, जियोग्राफी का जियोग्राफिकल थॉट देखा था, और लैंड एंड ह्यूमन इंट्रैक्शन या फिर ह्यूमन इकोलॉजी देखा था। मेथड्स एंड टेक्निक्स के बेसिस पर हमने कार्टोग्राफी देखा था, इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी। देन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी देखा था। फील्ड सर्वे मेथड्स भी देखा था। जियो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्राइजिंग टेक्निक्स सच एज रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS एंड LIS था। The above classification gives a comprehensive format of the branches of geography. Generally, geography curricula is taught and learnt in this format, but this format is not static. Yes, any discipline is bound to grow with new ideas, problems, methods, and techniques. For example, what was once manual cartography has now been transformed into computer cartography. Yes, पहले जब मैप बनता था वो हाथों से बनाया जाता था, अब कंप्यूटर में हम बनाते हैं ना सॉफ्टवेयर के थ्रू। So technology has enabled scholars to handle large quantum of data. The internet provides extensive information, thus the capacity to attempt analysis has increased tremendously. GIS has further opened vistas of knowledge. GPS has become a handy tool to find out exact locations. Technologies have enhanced the capacity of attempting synthesis with sound theoretical understanding. You will learn some preliminary aspects of these techniques in your बुक, प्रैक्टिकल और बुक। हाँ, ये हमने पढ़ा है ना क्लास NCERT, मतलब NCERT का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बुक जो क्लास 11 का है, वो बुक हमने ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं। तो चैनल में जाकर आप सर्च कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। और ये सारे एक प्लेलिस्ट में ही है, मतलब ये वीडियो जो प्लेलिस्ट में है वही प्लेलिस्ट में है, बट आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा क्योंकि उतना ऑर्गेनाइजेशन मेरे से हो नहीं पाया। ठीक है, अब देखो फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो हम फिजिकल ज्योग्राफी में आप फोकस करते हैं। दिस चैप्टर अपीयर्स इन द बुक एंटाइटल्ड फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। द कंटेंट्स ऑफ द बुक क्लियरली रिफ्लेक्ट इट्स स्कोप, क्योंकि ये बुक जो है सिर्फ हम फिजिकल ज्योग्राफी के साथ ही डील कर रहा हूँ ना, इस बुक को NCERT क्लास 11 वाला ये जो बुक है, तो हम फिजिकल ज्योग्राफी को एंड इस इंपॉर्टेंस को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर हमने ओवरऑल ज्योग्राफी को देखा कि क्या क्या ब्रांचेस होता है नहीं होता है, फिर हम पर्टिकुलरली फिजिकल ज्योग्राफी में आ गए। ठीक है, it is therefore appropriate to know the importance of this branch of geography. Physical geography includes the study of lithosphere, landforms, drainage, relief, and physiography. Atmosphere, its composition, structure, elements, and controls of weather and climate, temperature, pressure, winds, precipitation, climatic types, etc. Hydrosphere, oceans, seas, lakes, and associated features. It is therefore appropriate to know the importance of this branch of geography. So physical, हाँ हमने कहा था, यस पहले से पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर। आज यहाँ पर बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठंड भी थोड़ा लगा है मेरे को, तो बार बार पॉज करना पड़ रहा है इसलिए वीडियोज़ को, सॉरी फॉर दैट। Physical geography includes the study of lithosphere, landforms, drainage, relief, and physiography. Atmosphere, its composition, structure, elements, and controls of weather and climate, temperature, pressure, winds, precipitation, climatic types, etc. Hydrosphere, oceans, seas, lakes, and associated features with water, realm. And biosphere, life forms including human being and macroorganism and their sustaining mechanism, which food chain, ecological parameters, and ecological balance. Soils are formed through the process of pedogenesis and depend upon the parent rocks, climate, biological activity, and time. Time provides maturity to soils and helps in the development of soil profiles. Each element is important for human beings. Landforms provide the base on which human activities are located. The plains are utilized for agriculture. Plateaus provide forests and minerals. Mountains provide pastures, forests, tourist spots and are sources of rivers providing water to lowlands. Climate influences our house types, clothing, and food habits. The climate has a profound effect on vegetation, cropping pattern, livestock farming, and some industries, etc. Human beings have developed technologies which modify climatic elements in a restricted space, such as air conditioners and coolers. Temperature and precipitation ensure the density of forests and quality of grasslands. In India, monsoonal rainfall sets the agricultural rhythm in motion. Precipitation recharges the groundwater aquifers, which later provides water for agriculture and domestic use. We study oceans, which are the storehouse of resources.
Besides fish and other seafood, oceans are rich in mineral resources. India has developed the technology for collecting manganese nodules from oceanic bed. Soils are renewable resources which influenced a number of economic activities such as agriculture. The fertility of the soil is both naturally determined and culturally induced. Soils also provide the basis for the biosphere, accommodating plants, animals, and microorganisms. What is geography? Geography is concerned with the description and explanation of the aerial differentiation of the earth surface. ये रिचर्ड हार्टसन ने दिया था 1939 में. Geography studies the differences of phenomena usually related in different parts of the earth surface. ये हेटनार्ड ने बोला था. तो हार्टसन का की टर्म क्या था कि देखो एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है. और हेटनर का की टर्म क्या था? जियोग्राफी स्टडी द डिफरेंसेज ऑफ फेनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस. तो डिफरेंसेज ऑफ फेनोमेना, और ये पर एरियल डिफरेंशिएशन मतलब इन्होंने एरिया पर फोकस किया था और इन्होंने फेनोमेना पर फोकस किया था, किसी एक पर्टिकुलर फेनोमेना एक्टिविटी बोल सकते हो, है ना. जियोग्राफी इज कॉन्सर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन, मतलब रीजन पे फोकस किया था. एरियल डिफरेंशिएशन, एक एरिया कैसे अलग है दूसरे एरिया से, तो उस पर आई थिंक फोकस किया था हार्टसन ने. और जियोग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेज ऑफ फेनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस. तो फेनोमेना पर फोकस किया था, किसी एक पर्टिकुलर फेनोमेना को लेकर कैसे वो डिफरेंट पार्ट से रिलेट करता है उस फेनोमेना, मतलब सिमिलैरिटी या डिसिमिलरिटीज है, वो हेटनर ने बताया था. तो ये से आप याद रख सकते हो, मतलब ये की टर्म ही याद रखने पड़ेंगे. अगर आपको डेफिनेशन दे दिया गया, बोला गया कि ये डेफिनेशन किसका था, तो डेफिनेटली पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन तो याद नहीं रख सकते, तो आपको की टर्म से आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है. तो हार्टसन के साथ एरियल डिफरेंशिएशन जाएगा और हेटनर के साथ क्या जाएगा? डिफरेंसेज ऑफ फेनोमेना जाएगा, ठीक है, याद रखना ही है. The study of physical geography is emerging as a discipline of evaluating and managing natural resources. In order to achieve this objective, it is essential to understand the intricate relationship between physical environment and human beings. Physical environment provides resources and human beings utilize these resources and ensure their economic and cultural development. Accelerated pace of resource utilization with the help of modern technology has created ecological imbalance in the world. Hence, a better understanding of physical environment is absolutely essential for sustainable development. तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है. चलिए हम नेक्स्ट पेज को जाते हैं. तो नेक्स्ट पेज है नहीं, यहाँ पर ये चैप्टर जो है ख़त्म होते हैं और यहाँ पर सारे कुछ क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है, तो इसको हम जो है अभी के लिए स्किप करते हैं, हम पढ़ते हैं और हम बाद में काफ़ी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वगैरह के लिए, ठीक है. हो सकता है कि सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ अब, तो वो चीज़ें होगा बाद में. अभी सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं, फर्स्ट रीडिंग चल रहा है ना, क्योंकि पूरा बुक को एक साथ मैंने तो कभी नहीं पढ़ा आज के पहले, मतलब NCERT वाला, ठीक है, कभी नहीं पढ़ा, तो इसलिए कभी कभी जगह आप देखोगे कि अटक रहा हूँ ना. ओके, सो दैट इज़ नॉट ऑलवेज अनइंटेंशनल, sorry, not yes, that is not unintentional, quite intentional, because you know what I believe कि you remember the thing that you learn from by yourself more. खुद से जो चीज़ें सीखोगे आप, वो आपको ज़्यादा याद रहेगा. तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार मैं जो जाता हूँ पढ़ाने, ट्यूशन पढ़ाने में, तो उसको बोलता हूँ कि यार खुद सर्च करके देख लेना. अरे यार रुको, ठीक है, चलो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो देखो दी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, चैप्टर 2 है, तो स्टार्ट करते हैं. डू यू रिमेंबर दी नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? Starry nights have always attracted us since the childhood. You may also have thought of these stars and had numerous questions in your mind. ऐसे आजकल तो हम देखते नहीं हैं, हम स्टूडेंट को, मतलब जो जिसको प्राइवेट ट्यूटरिंग में करता हूँ, उसको काफ़ी टाइम जो टॉपिक आता है तो पूछता हूँ क्या कभी देखे हो आप नाइट में स्टार? तो यूजुअली ज़्यादातर स्टूडेंट यही बोलते कि नहीं देखे सर, मतलब निकलते नहीं ना, आज हम फ़ोन में ही बिजी रहते हैं. तो वही बात है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन को थोड़ा चेंज करना होगा इसको. NCERT को, बाय द वे, हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस? क्वेश्चन सच एज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस? तो हम जब बचपन में, मैंने तो खासकर जब देखते थे घर में रहते, स्पेशली क्या वो समर सीज़न में जब करंट चला जाता था, तब छत में जाकर सो जाते थे. वहाँ आकाश देखने में, मतलब स्काई को देखने में बहुत मज़ा आता था, है ना. कभी कभी लगता था कि वो स्टार गिर गया
और घर वाले बोलते थे कि वो देखना ही चाहिए, आंखें बंद कर देना चाहिए, ऐसे कुछ कहानियाँ चलते थे, अच्छा लगता था ना। ऐसे आजकल तो टाइम नहीं मिलता, तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली मैं मिस करता हूँ। मे बी मैनी मोर सच क्वेश्चंस आर स्टिल देयर इन योर माइंड. In this chapter, you will learn how these twinkling little stars are formed. With that, you will eventually also read the story of origin and evolution of the Earth. Now, early theories. Origin of the Earth. A large number of hypotheses are put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the Earth. One of the earlier and popular arguments was by German philosopher Immanuel Kant. ठीक है, तो ये ओरिजिन ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग कांट ने पहला जो आर्गूमेंट दिया था, पॉपुलर आर्गूमेंट कांट ने दिया था। मैथमेटिशियन लाप्लास से रिवाइज्ड इट इन 1796. इट इज नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस. तो नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था. द हाइपोथेसिस कंसीडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद ए यूथफुल सन which was slowly rotating. तो नेबुलर हाइपोथेसिस ने क्या बोला था कि द हाइपोथेसिस कंसीडर्ड दैट द प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ ए क्लाउड. एक क्लाउड से प्लैनेट बना है, ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद ए यूथफुल सन which was slowly rotating. जो सन जो है ये रोटेट कर रहा था और उसके पास मतलब उसके सराउंड में जो क्लाउड था वहाँ से प्लैनेट को फॉर्म हुआ था. In 1950, Otto Schmidt in Russia and Karl Wizkar in Germany somewhat revised the nebular hypothesis, though differing in details. They considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium, along with what may be termed as dust. तो ये दो साइंटिस्ट है, स्किमिट, ओटो स्किमिट एंड इन रशिया एंड कार्ल विज़कार इन जर्मनी. तो इन्होंने रिवाइज किया नेबुलर हाइपोथेसिस को और फिर बताया कि सन के सराउंड क्या था, सोलर नेबुला था, जो क्या है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस है और जिसे हम डस्ट भी बोलते हैं, ऐसा करके. अलॉन्ग विथ व्हाट मे बी टर्म्ड एज डस्ट, मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस के साथ और भी कुछ चीज़ें था जिसको डस्ट बोला जा सकता है, ऐसा बोला. द फ्रिक्शन एंड कोलिशन ऑफ पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड. तो इन सारे हीलियम, हाइड्रोजन गैस और डस्ट पार्टिकल्स के अंदर जो कॉलिशन हो रहा था उसके कारण एक डिस्क शेप्ड, ठीक है, क्लाउड बना. एंड द प्लैनेट्स वेयर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन. एंड वो जम के मतलब वो सारे डस्ट वगैरह एक साथ होकर धीरे धीरे प्लैनेट हमारा फॉर्म हुआ. However, scientists in later period took up the problems of origin of the universe rather than that of the just the earth or the planets. बाद में जो साइंटिस्ट आया तो वो थोड़ा उनका जो सोचने का दायरा है वो थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है. तो उन्होंने ये प्लैनेट और अर्थ छोड़कर मतलब पूरा यूनिवर्स को लेकर सोचने लगा. तो मॉडर्न थ्योरीज क्या बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को लेकर? द मोस्ट पॉपुलर आर्गूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कांट के बारे में जाना, देन लाप्लास के बारे में जाना, उन्होंने दिया था नेबुलर हाइपोथेसिस, और ऑटो स्किमिट एंड विज़कार, क्या पड़ा, विज़कार ना, कार्ल विज़कार जर्मनी से है, तो उन्होंने फिर से रिवाइज किया और फिर हमने बिग बैंग थ्योरी पे आ गया. तो इसके आगे बिग बैंग थ्योरी मोस्ट रिसेंट है एंड वाइडली एक्सेप्टेड है, बट इसके आगे और भी सारे थ्योरीज है. ठीक है, तो आप अगर कॉम्पिटिटिव की प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे हमने टारगेट कर रहा है EMRS, BPSC लाइक दैट, तो आई थिंक वो सारे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ सकता है आपको. बट सिलेबस के अकॉर्डिंग तो NCERT दिया गया है, तो भाई दवा देखेंगे तो आप एटलीस्ट ये याद रखना. बट अगर आपको मन किया तो पढ़ सकते हो, या फिर मैंने पढ़ा तो डेफिनेटली आपको इस तरीके से मैं आपका कवर करवा दूंगा. ठीक है, मैंने अगर पढ़ा, मेरे पास एक बुक है फिजिकल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर खुल्लर, तो उस बुक में सारे डिटेल में ये जो है सारे थ्योरीज मतलब एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ से अच्छा लगता है उस बुक को मैं भी पढ़ने में. तो उस बुक से मैंने कभी रिवाइज किया तो आपके साथ शेयर कर दूंगा. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. बिग बैंग थ्योरी को और एक नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. एडविन हबल इन 1920 प्रोवाइडेड एविडेंस दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. तो एडविन हबल नाम की जो साइंटिस्ट है 1920 में इन्होंने एविडेंस दिया था कि एक्चुअली में यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है. एज टाइम पासेस गैलेक्सीज मूव फार्दर एंड फार्दर अपार्ट. यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन. तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का मतलब क्या है ना? टेक अ बैलून एंड मार्क सम पॉइंट्स ऑन इट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज.
नाउ इफ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बैलून, मतलब उसके अंदर गुब्बारे को फुलाने लग गए आप, द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द बैलून विल अपीयर टू बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एज द बैलून एक्सपेंड्स. Similarly, the distance between the galaxies is also found to be increasing and thereby the universe is considered to be expanding. However, you will find that besides the increase in the distances between the points on the balloon, the points themselves are expanding. This is not in accordance with the fact. Scientists believe that though the space between the galaxies is increasing, observations do not support the expansion of galaxies, so the balloon example is only partially correct, right? तो यहाँ पर क्या बोले कि साइंटिस्ट बिलीव दैट दो द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज. मतलब उसके अंदर क्या है ना, गैप बढ़ रहा है, मतलब एक गैलेक्सी से एक गैलेक्सी दूर जा रहा है, बट ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज. मतलब गैलेक्सीज की जो शेप है या फिर जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके अंदर जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसलिए बैलून के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बैलून में एक डॉट दिया, जितना बैलून एक्सपेंड करेगा वो डॉट भी एक्सपेंड करते जाएगा, है ना. तो ऐसा नहीं है. सो द बैलून एग्जाम्पल इज ओनली पार्शियली करेक्ट. द बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स. तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टेजेस दिया गया है वो क्या है ना, देखते हैं. एक फर्स्ट स्टेप है, इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल सिंगुलर एटम विथ एंड. देखो ये इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लो. ठीक है, पहले एक बॉल था, सिंगुलरिटी जिसे हम बोलते हैं, ये फिर वो जो एटम बोला उसको, फिर उसके ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होकर ये सारे गैलेक्सीज बन गए, और अब धीरे धीरे गैलेक्सीज जो है, गैलेक्सीज के अंदर की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो बढ़ता रहा. ठीक है, तो इसको हम बिग बैंग बोल रहा है. तो फिर से पढ़ते हैं हम इस पॉइंट को. इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस. मतलब यूनिवर्स में आज जितने भी मैटर्स आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में एक जगह था, एक साथ था. जैसे हम पेंजिया पढ़े थे ना, सारे कंटिनेंट्स एक साथ था. तो मान लीजिए ऐसे यूनिवर्स में जो भी प्लैनेट्स से स्टार से सारे इकट्ठा होकर एक पॉइंट था, तो उसको हम टाइनी बॉल या फिर सिंगुलर एटम बोलते हैं, या फिर सिंगुलरिटी बोलते हैं. ओके, अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी. तो उसका जो वॉल्यूम था वो बहुत ही स्मॉल था. ठीक, और उसके अंदर क्या था, बट टेम्परेचर इनफाइनाइट था, डेंसिटी भी इनफाइनाइट था. ओके, सेकंड स्टेज में क्या होता है, देखो. एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल, बिग बैंग मतलब वो जो ब्लास्ट हुआ था बोल रहा है उसको, द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली. तो वो टाइनी बॉल क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है. दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन, और यहाँ से जो उसका वॉल्यूम है वो बहुत बढ़ जाता है. इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट. तो आज ये मान लिया जाता है कि जो वो ब्लास्ट है, बिग बैंग जो है, वो कब हुआ था, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था. तो ये याद रखना, ये स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो बिग बैंग कब होता है, 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर दी प्रेजेंट. द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवेंट टू दी प्रेजेंट डे. आज भी हो रहा है. एज इट ग्रीव सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर. देयर वॉज पार्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड आफ्टर द बैंग. देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लोड डाउन. तो पहले जो है बहुत स्पीडी एक्सपेंशन हो रहा था, देन स्लोड डाउन. विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म. तो इस जो एक्सपेंशन हुआ था, तो फर्स्ट 3 मिनट्स के बाद जो फर्स्ट एटम है वो बनना स्टार्ट हुआ था. ऐसा कुछ है. नाउ थर्ड स्टेज में क्या होता है कि विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, मतलब 3 लाख ईयर्स बाद. ठीक है, 3 लाख ईयर्स मतलब 0.3 मिलियन. टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन. वो जो इनफाइनाइट टेम्परेचर था वो ड्रॉप होकर कितना हो जाता है, 4500 केल्विन हो जाता है. तो इसको आप सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करिए और कमेंट करके बताइए. एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर. तो जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो उसके बाद क्या फॉर्म होता है, एटॉमिक मैटर फॉर्म करता है. एंड द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट. ठीक है, और उसके बाद यूनिवर्स जो है वो थोड़ा वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि आज हमको आकाश दिखता है ना, वैसे यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट. या फिर हम टेलीस्कोप के थ्रू हम किसी दूसरे प्लैनेट को भी देख पाते हैं. तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए तो संभव है. द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज. ये देखो, द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स
इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। गैलेक्सीज का कोई शेप का चेंज नहीं हो रहा है, बट बिटवीन द गैलेक्सीज मतलब दो गैलेक्सीज के बीच में जो स्पेस था वो इंक्रीज हो रहा है। एंड ऑल्टरनेटिव टू दिस वाज हॉयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। तो ये हॉयल्स कॉन्सेप्ट क्या था, या फिर स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, हॉयल ने दिया था। इट कंसिडर्ड द यूनिवर्स टू बी रफली दी सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये उल्टा था हॉयल का कॉन्सेप्ट, स्टेडी स्टेट था। तो इन्होंने बोला कि जो यूनिवर्स का जो क्या है, यूनिवर्स टू बी रफली दी सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इसका जो आज जैसा है वो ऐसा ही था। हाउएवर विद ग्रेटर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, साइंटिफिक कम्युनिटी एट प्रेजेंट फेवर्स आर्गुमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। तो हम जैसे जैसे एविडेंस, जैसे हमने देखा एडविन हबल ने 1920 में पहला जो एविडेंस दिया था बिग बैंग का, तो हम कैसे हॉयल को सपोर्ट करेंगे ना, तो जब हमारे पास एक्सपेंशन का एविडेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो याद रखना कि हॉयल का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टेडी स्टेट के बारे में था, और बिग बैंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एडविन हबल ने दिया था। हबल ने दिया था या एविडेंस प्रेजेंट किया था, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एडविन हबल को ही माना जा सकता है। ओके, हमने ऐसा ये एक लिस्ट था यहाँ पर, देखो एक बार मैं देख के बताता हूँ। लूसेंट में मैंने कल ही पढ़ा, तो वहाँ पर वो सारे थ्योरीज आपको बता देता हूँ, ताकि नाम आपको याद रखना कि इस थ्योरी किसने दिया था, यही बेसिकली पूछा जाएगा आपको। हाँ, तो देखो लूसेंट की बुक में यहाँ पर क्या दिया है, एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पर 4 थ्योरीज है एंड उनका प्रोपाउंडर दिया हुआ है, ठीक है। तो थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ऐसे करके दिया हुआ है, और थ्योरी एंड प्रोपाउंडर का टेबल दिया हुआ है, तो याद रखना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बिग बैंग थ्योरी का प्रोपाउंडर कौन है, एडविन हबल बोला ना कुछ देर पहले, तो उन्होंने एविडेंस दिया था, बट ये प्रोपाउंडर यहाँ पर लिखा हुआ क्या, ई जॉर्ज लेमाइटर। ई जॉर्ज लेमाइटर, इन्होंने प्रोपाउंड किया था बिग बैंग थ्योरी को। ओके, नाउ स्टेडी स्टेट थ्योरी हमने अभी पढ़ा कि स्टेडी स्टेट किसने दिया था, ये हॉयल ने दिया था, बट यहाँ तो कुछ और ही बोल रहा है यार। ये स्टेडी स्टेट थ्योरी दिया था, बोल रहे कि थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी। भाई ये कन्फ्यूज कैसे कर रहे हैं यार, लाओ ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे अब, क्योंकि लूसेंट जो है वो भी तो रिलायबल सोर्स ही है ना, अब एनसीईआरटी भी रिलायबल सोर्स है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना चीज़ें। स्टेडी स्टेट थ्योरी यहाँ पर बोल रहे हैं हॉयल ने दिया था, और अच्छा हो सकता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, ऐसा क्या यहाँ पर। भाई दो नाम आप याद रखो, फिर क्या कर सकते हैं। अगर हॉयल नहीं है तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे हम, तो हॉयल करेंगे, हॉयल है तो, और अगर नहीं है हॉयल तो फिर इस गोल्ड या हार्मन बॉन्डी, गोल्ड एंड बॉन्डी को करना पड़ेगा। ओके, थॉमस गोल्ड एंड हार्मन बॉन्डी। देन और एक थ्योरी का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया कि पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, तो ये दिया था एलन सैंडेस ने, डॉक्टर एलन सैंडेस ने दिया था पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। और एक है इन्फ्लेशनरी थ्योरी, तो इन्फ्लेशनरी थ्योरी किसने दिया था, एलन एच गुट ने। तो बेसिकली लूसेंट में जो दिया हुआ है और एनसीईआरटी में पूरा उसका कोई मेंशन ही नहीं है ना। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ा, वहाँ पर इसका प्रोपाउंडर लेमाइटर का कोई मेंशन नहीं है, और स्टेडी स्टेट पढ़ा तो एनसीईआरटी बोल रहा है कि हॉयल ने दिया था, बट यहाँ पर गोल्ड एंड हार्मन बॉन्डी ने दिया है, और बाकी 2 थ्योरीज के बारे में एनसीईआरटी में कोई मेंशन है ही नहीं। ओके, तो ये मैंने बता दिया, मैंने रिसेंटली कल ही पढ़ा था तो याद था, तो मैंने बता दिया। अब आप जो आपका मतलब मन करे तो आप नोट करके रख सकते हो, या फिर लूसेंट आपके पास है तो भी आप खोल के देख सकते हो, या फिर वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ओके, तो हम स्टार फॉर्मेशन के बारे में अब पढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। These initial density differences gave rise to differences in gravitational forces and did cause the matter to get drawn together. These formed the basis, मतलब जिसका ग्रेविटी ज़्यादा है वो जिसका ग्रेविटी कम है उसको खींच ले रहा है। These formed the basis for development of galaxies. A galaxy contains a large number of stars. Galaxies spread over vast distances that are measured in thousands of light years. तो गैलेक्सी का डेफिनेशन आपको पता है। The diameters of individual galaxies range from 80,000 to 1,50,000 light years. ठीक है, ये याद रखना, लाइट ईयर्स। लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो वही तो व्हाट इज लाइट ईयर्स ना, एक ईयर में वो स्पीड में कितना दूर तक जा सकता है लाइट, उसको हम लाइट ईयर कहेंगे। तो वो डिस्टेंस आपको मापना पड़ेगा। ए गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ ए वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। तो ये नेबुला क्या है,
ना जो गैलेक्सी जब फॉर्म हो रहा था तो एक्चुअली इसका फर्स्ट स्टेज क्या था कि एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस था और ये एक्चुअली क्लाउड था, तो उसी को हम नेबुला बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? नेबुला बोलते हैं। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस हमने पढ़ा, नेबुला थ्योरी किसने दिया था? पहले ही था ना मेंशन। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लाम्स ऑफ गैस। तो इस नेबुला धीरे धीरे और भी कॉन्टेस्ट होते गया और उसको क्लाम्स ऑफ गैसेस में डेवलप किया। दिस क्लाम्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसेस बॉडीज, फिर वो और भी डेंस होता जा रहा, गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, और उससे स्टार बन गया। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। तो हमारा जो सन है वो कब बना था? 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो ऐसा बना था, या फिर और भी अदर स्टार्स जो है वो 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो बना था। और बिग बैंग जो है वो 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। ठीक है, बिग बैंग। देखो यहाँ पर लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि ए लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। ठीक है, लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। Light travels at a speed of 3 lakh km per second. Considering this, the distance the light will travel in 1 year. ठीक है, मैंने जैसा बोला कि एक ईयर में वो जितना दूर तक जा सकता है, ठीक है, ट्रैवल इन 1 year इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। दिस इक्वल्स टू 9.4610 टू द पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज क्या हम 150 करोड़ किलोमीटर मानते हैं ना, तो वही यहाँ पर लिखा देखो, 1 दशक शतक हजारों लक्ष निजुत कटी, तो 149। अच्छा, इसको हम वर्ड में अगर बोले तो क्या बोलेंगे? तो 14 करोड़, ठीक है, 95,98,000 किलोमीटर। हाँ सॉरी, 150 करोड़ बोल दिया ना मैंने, 15 करोड़ मानते हैं हम। इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स इट इज 8.311 मिनट्स। इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स इट इज 8.311 मिनट्स। मतलब लाइट को ट्रैवल करने में हम जानते हैं 8 मिनट्स लगते हैं लगभग, कि सन से जो निकलता है सनरेज डेली, वो अर्थ पे आने के लिए 8 मिनट लगभग टाइम लगता है। तो वो एग्जैक्ट क्या है? 8.311 मिनट। तो अर्थ का और सन का बीच का जो डिस्टेंस होगा हम लाइट ईयर में मापेंगे तो उसका क्या डिस्टेंस रहेगा? 8.311 मिनट्स। इसीलिए पहले लाइन में बोला गया कि इट इज़ नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ए लाइट ईयर इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस नॉट ए टाइम, क्योंकि यहाँ पर आप मिनट पे माप रहा है। तो जब लाइट ईयर बोल रहे हो तब तो ठीक है, और लाइट ईयर मतलब एक ईयर के साथ कोई लिंक नहीं है, बट एक ईयर में वो जितना डिस्टेंस जा सकता है उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आए होंगे। आप 2-3 बार लाइन को पढ़िए तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मैंने जब पहली बार पढ़ा था, बार बार पढ़ने के बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आया है अभी, और मैंने कोशिश किया कि आपको समझाने की, एंड आई होप आप समझेंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो फिर से दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आपका कुछ डाउट हुआ या फिर मैंने कुछ गलत बता दिया तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो। थैंक यू। ओके सॉरी, थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो शेष नहीं हो। चलो, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। तो हमने यूनिवर्स पढ़ लिया। देखो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कॉन्साइज मैटर में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली जो खुल्लर को परे भी हो, मैंने जैसे पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं तो बहुत हेवी लगता है ना, कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट खो जाता है। तो यहाँ पर उसको पढ़ने के बाद अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपको एक क्या है, लिंक मिल जाता है, एक समरी मिल जाता है, एक सिनॉप्सिस मिल जाता है, जो आपको याद रखने में हेल्प करेगा। तो हमने देखो पहले अर्थ पढ़ रहे थे, फिर कुछ साइंटिस्ट आया और साइंटिस्ट ने बोला नहीं नहीं नहीं, सिर्फ अर्थ को जानने से कुछ नहीं होगा, हमको पूरा यूनिवर्स जानना है। तो उन्होंने पहले ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में पढ़ा और फिर उसके बारे में बताया, तो हमारा बिग बैंग आ गया और हमने वो पढ़ लिया, यूनिवर्स पढ़ लिया। तो उसके बाद क्या है, स्टार फॉर्मेशन हुआ। स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ? नेबुला हुआ था, तो नेबुला जब कंडेंस हुआ तो उसके बाद वो कंडेंस होते होते वो स्टार बन गया। ठीक है, जो कि 5 to 6 बिलियन ईयर्स हुआ था। और यूनिवर्स जो है वो 13.7 बिलियन ईयर्स के पहले फॉर्म हुआ था, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ था तब फॉर्म हुआ था। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो स्टार बन गया, अब प्लैनेट क्या आते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स।
फर्स्ट स्टेज क्या है, द स्टार्स आर लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैस विद इन ए नेबुला। तो नेबुला फॉर्म होता, उसके अंदर तो स्टार फॉर्म होता ना, और नेबुला कहाँ फॉर्म होता, गैलेक्सी के अंदर फॉर्म होता। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कोर टू द गैस क्लाउड एंड ए ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। तो जो स्टार बन गया कंडेंस हो कर, वो तो ठीक है, स्टार बन गया, बट जो गैस उसके साथ जोड़ नहीं पाया वो तो उसके सराउंडिंग ही था, तो फिर वो उस स्टार के सराउंड करके घूमने लग गए। ओके, रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस, जो कि डिस्क शेप का था। ओके, ये था फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेज में क्या होता है, द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कॉन्डेंस्ड। तो वो क्लाउड फिर से कॉन्डेंस्ड होने लगा एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। और फिर वहाँ से एक ऑब्जेक्ट बन गया। दिस स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन, मतलब एक अपर के साथ जुड़ने के बाद इनटू व्हाट डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स डेवलप वहाँ से। लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कॉलिशन। तो उस प्लैनेटेसिमल ने जब कोलाइड करना स्टार्ट किया, एक अपर के साथ जुड़ना स्टार्ट किया फिर से, तो वहाँ से कॉलिशन होने लगा और वहाँ से लार्ज बॉडीज बनने लगे। एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। और उस मटेरियल एक अपर के साथ कैसे जुड़ गया, जैसे कि एक मैग्नेट है, ठीक है, एक बड़ा मैग्नेट है और उसके साथ छोटा छोटा मैग्नेट का टुकड़ा जुड़ रहा है। ऐसे करके प्लैनेटेसिमल बना था, और उस प्लैनेटेसिमल जो सबसे बड़ा था उनमें से छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल आकर अटक गए। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, स्टिक टुगेदर। प्लैनेटेसिमल्स आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। तो प्लैनेटेसिमल क्या है, ए लार्ज नंबर ओके ऑफ स्मॉलर बॉडीज, मतलब छोटे छोटे बॉडीज के बहुत सारे नंबर्स में होना, उनको प्लैनेटेसिमल बोलते हैं हम। इन द फाइनल स्टेज दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स एक्रीट टू फॉर्म ए फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। फिर वो छोटे छोटे बॉडीज जब जुड़ गया, वहाँ से हमारा प्लैनेट्स फॉर्म हुआ। ठीक है, तो यह हमने प्लैनेट का भी फॉर्मेशन समझ लिया। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कौन सा चीज़ वे में चीज़ों को दिया गया है यहाँ पर, उतना थियोरीज वगैरह नहीं है, तो आसान भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। रियली अप्रिशिएटेड द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। नाउ इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब हम यूनिवर्स देख लिया, स्टार देख लिया, प्लैनेट देख लिया, अब फिर हमारा घर में वापस आते हैं। तो हम देखो अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ तो ठीक है, अर्थ मान लो अर्थ फॉर्म हो गया, प्लैनेट बन गया, बट अर्थ के जैसा तो सारे प्लैनेट नहीं बने ना। अर्थ एक यूनिक है ना, अर्थ तो एक यूनिक प्लैनेट है। तो इसका कैसे बना, जब बर्थ हुआ था प्लैनेट्स का तब तो ऐसा नहीं था, तो डेफिनेटली इवोल्यूशन होकर हमारा अर्थ जो प्रेजेंट अर्थ है वो बना है। तो हम देखेंगे। डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज ए बैरन, या जैसे बोला रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विथ अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। एंड ये चीज़ आपको पता भी है कि अर्थ जब बना था तो बहुत हॉट था, ये रॉकी था, ये बैरन था, कुछ नहीं होता था, ये पर कोई लाइफ नहीं था। ठीक है, और इसका एटमॉस्फेयर जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस ही वहाँ पर था। दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। Hence, there must have been some events, processes which may have caused this change from rocky, barren and hot earth to a beautiful planet with ample amount of water and conducive atmosphere favoring the existence of life. Wow, what a sentence. In the following sections, you will find out how the period between the 4,600 million years and the present led to the evolution of लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमने पहले पढ़ा ना कि जो प्लैनेट्स है वो लगभग 4.5 टू क्या पढ़ा था, हाँ 4.5 तो था ना, और ये कहाँ गया वो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, अच्छा ये वाला, हाँ ये देखो, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। तो यही 5 बिलियन को अगर हम मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे ये वाला 5000 मिलियन ईयर्स बोलेंगे हम, मतलब 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन होता है ना, तो वैसा ही। तो अर्थ जो है एक्चुअली वो 4.6 बिलियन ईयर्स में फॉर्म किया था, ऐसा माना जाता है, या फिर उसको हम मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो हो गया 4600 मिलियन ईयर्स। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है, ईयर्स एंड द प्रेजेंट। तो वहाँ से मतलब 4000 बिलियन ईयर्स हम पीछे से आज तक की जो जर्नी है वो देखेंगे, तो क्या है देखेंगे कि बहुत सारी इवोल्यूशन वहाँ पर हुआ है। ठीक है, इवॉल्व किया है चीज़ें, और रिवोल्यूशन नहीं है, इवोल्यूशन मतलब धीरे 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 चेंज हुआ है, अचानक कुछ नहीं हो गया। द अर्थ हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमोसफियर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब फ्रॉम एकदम आउटर से लेकर
अर्थ की सेंटर तक हम लेयर देख पाएंगे। डेफिनेटली एटमॉस्फेयर के भी काफ़ी लेयर से हम अर्थ के अंदर जाएंगे तब भी हमको मेंटल मिलेगा, कोर मिलेगा, एटमॉस्फेयर वगैरह बहुत सारे लेयर्स हमको मिलेगा। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमोसफियर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। और ये जो मटेरियल से ये लेयर्स बना है वो डेफिनेटली यूनिफॉर्म नहीं है। द एटमोस्फेरिक मैटर हैज़ द लीस्ट डेंसिटी। एटमोसफियर क्या है, सबसे कम डेंसिटी है। फ्रॉम द सरफेस टू डीपर डेप्थ द अर्थ इंटीरियर हैज डिफरेंट जोन्स एंड ईच ऑफ दिस कंटेंट्स मटेरियल्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसलिए तो हमने डिफरेंट लेयर पाए ना, कि उसका जो मटेरियल है, जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, इसलिए तो हमने अलग किया है एक लेयर के साथ और एक लेयर को। हाउ वॉज द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डेवलप। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ऐसे डेवलप हुआ कैसे ये लेयर, क्यों ऐसे बना। इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर, तो हम लिथोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं। द अर्थ वॉज मोस्टली इन ए वोलाटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमोडियल स्टेज। तो जब प्रीमोडियल मतलब बिगिनिंग में ये वोलाटाइल स्टेट में था, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज्ड। तो धीरे धीरे जब इसका डेंसिटी बढ़ता गया तो इसका टेम्परेचर भी जो है बढ़ता गया। एज ए रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। ठीक है, और डेंसिटी बढ़ता गया तो हम जानते हैं कि अगर आप जो सबसे ज़्यादा डेंस है वो नीचे चला जाएगा। दिस अलाउड हेवियर मटेरियल्स लाइक आयरन टू सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऐसे ही जो आयरन है वो अर्थ के एकदम सेंटर में चला गया। एंड द लाइटर वंस टू मूव टुवर्ड्स द सरफेस। जो लाइटर वंस है वो सरफेस में आ गया या फिर रह गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड एंड कंडेंस्ड इनटू अ स्मॉलर साइज। और जैसे जैसे टेम्परेचर फिर से घटता गया तो वो सॉलिडिफाई होता गया और जो है साइज जो है स्मॉलर हो गया। मैंने इंग्लिश से हिंदी शिफ्ट कर गया ना, हाँ अननोइंगली, दिख रहा हो, मतलब मेरे को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहिए। द लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए क्रस्ट। और ये एट लेटर फिर एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है चलो। दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए क्रस्ट। मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर बोरिंग हो जाएगा, फिर दूसरे वीडियो जो है सही हो जाएगा क्योंकि बेकार में टाइम जाएगा। वो आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत ही बेसिक इंग्लिश लिखा हुआ है। This letter led to the development of the outer surface in the form of a crust. During the formation of the moon, due to the giant impact, the earth was further heated up. It is through the process of differentiation that the earth forming material got separated into different layers. Starting from the surface to the central parts, we have layers like the crust, mantle, outer core and inner core. From the crust to the core, the density of the material increases. We shall discuss in detail the properties of each of this layer in the next chapter. डेफिनेटली हम अर्थ इंटर पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें रहेगा वहाँ पर। तो इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई कि मून कैसे फॉर्म होता है अर्थ के साथ। तो जब मून फॉर्म होता है तो अर्थ फिर से हॉट हो गया था और फिर से वहाँ से मून निकल के आया था। यहाँ पर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जायंट इम्पैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट द अर्थ, डिफरेंशिएशन मतलब वही हीट हो गया तो फिर से अर्थ से कुछ मटेरियल निकल के आया, मतलब सेपरेट हो गया और वहाँ से जो है मून बन गया ऐसा। नाउ इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर कैसे इवोल्व हुआ, तो ये तो हमने देख लिया कि हाँ डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो लेयर से वो बन गया। जो डेंस मटेरियल था वो नीचे चला गया, मतलब सेंटर में चला गया, और जो द लाइटर मटेरियल्स रिमेंट इन द अपर लेयर एंड इट फॉर्म्स द लिथोस्फीयर। ये हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया, ठीक है, लिथोस्फीयर जान लिया। देखो पहले ये पॉइंट ही ऐसा था कि इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, मतलब हम जो ज्योग्राफी है वो तो हम लिथोस्फीयर को ही स्टडी करते हैं ना, मतलब अर्थ सरफेस को स्टडी करते हैं, हम अंदर के तो जाते नहीं, वो जियोलॉजिस्ट करते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ लिथोस्फीयर ही बताया गया, ठीक है। और देखो इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये दोनों चीज़ भी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। द प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीपली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब प्रेजेंट का जो कॉम्बिनेशन है, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर ही क्या 99% फॉर्म कर देता है, ठीक है। 78% है आपका क्या नाइट्रोजन है एंड 21 ऑक्सीजन है ना, या फिर उल्टा बोल दिया मैंने। यू विल बी डीलिंग विद द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन चैप्टर 8। तो हम एटमॉस्फेयर को चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देयर आर 3 स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो देयर आर 3 स्टेजेस, मतलब प्रेजेंट एटमॉस्फेयर बनने में लिए देयर आर 3 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर। पहले तो वो प्रीमोडियल मतलब जो बिगिनिंग का एटमॉस्फेयर था वो लॉस्ट हो गया, ठीक है, मतलब कुछ चेंजेस हो गया। लॉस हो गया मतलब क्या हो गया यार,
इन द सेकेंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू दी, अच्छा वो गायब हो गया है ना, वो सारी चीज़ें जो है जो क्लाउड फॉर्म हुआ था वहाँ से प्लैनेट बन गया, स्टार बन गया, तो क्लियर हो गया है ना, तो एटमॉस्फेयर नाम की कोई चीज़ नहीं था, ये बोल रहा है। इन द सेकेंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर को फॉर्म करने में मदद किया। फाइनली द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसके बाद जब प्लांट बना तो धीरे धीरे जो चीज़ें मॉडिफाई हो गए, मतलब अर्थ के अंदर से हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस निकाला था, ऐसा बोलना चाहता है आई थिंक। और उसके बाद जब लिविंग मैटर आया तब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक है। द अर्ली एटमॉस्फेयर विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ द सोलर विंड्स। हाँ, तो सोलर विंड से आया था हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन केस ऑफ अर्थ बट ऑल्सो इन ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब सोलर से आ रहा है तो डेफिनेटली सारे मतलब सोलर के अंडर सारे प्लैनेट्स है, तो सारे प्लैनेट्स में वो चीज़ें मिलेगा, सबको मिलेगा ना। हाँ, तो वही बात है। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन केस ऑफ द अर्थ बट ऑल्सो इन ऑल द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मतलब सारे प्लैनेट्स में हमको हाइड्रोजन एंड हीलियम मिल जाएगा, व्हिच आर सपोज टू हैव लॉस्ट देयर प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड्स। तो वहाँ से जो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर था वो डिस्ट्रॉय हो गया और नया जो है हाइड्रोजन हीलियम का एटमॉस्फेयर बन गया सोलर विंड्स के कारण। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर आर रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। तो जब अर्थ कूल हो रहा था तो उसके अंदर से जो गैसेस एंड वाटर वेपर था वो निकल के आया। दिस स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, पर वहाँ से इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन्ड वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। द प्रोसेस थ्रू व्हिच, देखो ये सारी चीज़ें था बट बहुत लिटिल था, ये बोल रहा है ना, ऑक्सीजन था बट बहुत लिटिल था। द प्रोसेस थ्रू व्हिच द गैसेस आर आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। तो इस प्रोसेस को हम डीगैसिंग बोलते हैं। कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शंस कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस टू द एटमॉस्फेयर, बट बाहर आया कैसे ना, वॉल्केनोज के थ्रू। एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड। तो जैसे ही वो गैस वाटर वेपर्स बाहर आने लगा, अर्थ और भी कंडेंस्ड होते जा रहा। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजॉल्व्ड इन रेन वाटर एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज्ड कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेन वाटर में डिजॉल्व हो गया, ठीक है, और जैसे जैसे रेन बढ़ता गया वैसे वैसे अर्थ और भी कूल होता गया। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सरफेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशंस टू गिव राइज टू ओशियंस। और जैसे वो रेन कोई डिप्रेशन में पड़ता है, मतलब कोई क्या बोले से नीचू जाएगा, मतलब डिप्रेशन है ना, अरे यार ओशियंस, तो वहाँ पर पढ़ के ओशियंस फॉर्म होते हैं गैप्स में पढ़ के। द अर्थ ओशियंस आर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ ओशियंस आर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ फॉर्म होने के 500 मिलियन ईयर्स के अंदर। ओके, तो अर्थ फॉर्म होता 4600 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक, और उस फिर 4600 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, मतलब 500 मिलियन ईयर्स के अंदर अर्थ की एज जब 500 मिलियन ईयर्स था उसके अंदर ओशियंस बन गए थे, ऐसा कुछ बोलना चाहता है। दिस टेल्स अस दैट द ओशियंस आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स एगो। हाँ, तो आज के हिसाब करें तो ओशियंस आर 4000 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब अर्थ के एज से 500 मिलियन ईयर कम है उसका एज, है ना। समटाइम्स अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ बिगन टू इवॉल्व, और आज से 3000 मिलियन ईयर्स एगो जो है लाइफ स्टार्टेड टू इवॉल्व। हाउएवर अराउंड 2500 to 3000 मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट इवॉल्व। बट ये जो पहले ही तो प्लांट नहीं बने ना, बैक्टीरिया वगैरह बने थे, तो उसको फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं था। बट ओनली 3000 मिलियन ईयर्स एगो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बना था या फिर इवॉल्व हुआ था। लाइफ वॉज कॉन्फाइंड टू दी ओशंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये जो लाइफ है सिर्फ ओशन में ही था, बहुत लॉन्ग टाइम तक। ओशंस बिगन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओशन में जो लाइफ था वो उस फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऐड करता रहा। इवेंचुअली ओशंस आर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, और पूरे ओशियन में ऑक्सीजन फैल गया। एंड 2000 मिलियन ईयर्स एगो ऑक्सीजन बिगन टू फ्लैट द एटमॉस्फेयर। और फिर 2000 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब आज से 2000 मिलियन ईयर्स एगो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होने लगा।
तो फिर ऑक्सीजन जब एटमॉस्फेयर में आ गया तब जो है लाइफ भी इवॉल्व करने लगेगा। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ देखो, द लास्ट फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिलेट टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इट इज अनडाउटेडली क्लियर दैट इनिशियली द अर्थ और इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज नॉट conducive for the development of life. Modern scientists refer to the origin of life as a kind of chemical reaction which first generated complex organic molecules and assembled them. मतलब chemical reaction से सारी चीज़ें स्टार्ट हुआ था ना। This assemblage was such that they could duplicate themselves, converting inanimate matter into living substances. तो इसका मतलब क्या है कि दे डुप्लीकेट देमसेल्स, मतलब रिएक्शन होते रहा, डुप्लीकेट होता रहा, मतलब और भी बनता रहा, है ना। कन्वर्टिंग इनएनिमेट मैटर इनटू लिविंग थिंग्स, मतलब इनएनिमेट या फिर नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स में कन्वर्ट हो गया। कैसे? वो केमिकल रिएक्शंस के कारण। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट इन डिफरेंट पीरियड्स इज फाउंड इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। डेफिनेटली द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी हैव बीन फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस मच ओल्डर दैन सम 3000 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब ब्लू एल्गी जो पाया गया है वो उसका एज 3000 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा है। इट कैन बी अज्यूम दैट लाइफ बिगन टू इवॉल्व समटाइम्स 3800 मिलियन ईयर्स एगो। तो लाइफ जो है वो 3800 मिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ था। द समरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू द मॉडर्न मैन इज गिवन इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑन पेज 18। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो ये कैसे बैक्टीरिया से हम एक ऐसा मैन, मतलब इतना इंटेलिजेंट मैन हमारा जो वर्ल्ड में अभी का है कैसे बना, वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के थ्रू हम यूजुअली दिखाते हैं। तो वहाँ पर चीज़ जाकर पढ़ेंगे पेज 18 में, ठीक है। ये कितना पेज का है? ये मतलब 17 पेज चल रहा है ना, तो 18 पेज मतलब अच्छा ये वाला है। तो जाए हो हम देखेंगे, कोई बात नहीं, एनीवेज तो हम देखेंगे बाद में जाकर। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर 3 है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। चलिए।